ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था वो था रिगार्डिंग करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी जो हमने टॉपिक देखा था, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट I अपॉन एरिया A। तो अगर मैं कहूं कि एक वायर है जिसका एरिया है A और उसमें से I करंट फ्लो हो रहा है, देन व्हाट इज द करंट डेंसिटी J? इट इज इक्वल टू I by A। If you have been given a radius R, then area can be replaced with what? Pi R square. Then J can be written as what? I upon pi R square. This kind of simple question you will get from this topic. Now the next topic we are going to discuss is drift speed, drift velocity of electron and रिलैक्सेशन टाइम। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। थियोरेटिकल टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी कंडक्टर जो है, मेटालिक कंडक्टर, अगर उसके दोनों एंड पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, देन व्हाई वी गेट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जैसे आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा कि जो मेटालिक वायर है उसके अंदर ये जो पॉजिटिव आयंस है उनकी पोजीशन फिक्स है, दीज आर फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस, they are not moving anywhere, and apart from that there are free electrons present within the atom. This free electron constantly perform random motion. ये free electron का कोई डायरेक्शन नहीं है, but they perform random motion. Why they perform random motion? What is the cause of their random motion? The energy that is required for that random motion is due to the temperature. The energy that is required for this random motion of electron, or rather I should say electrons move randomly because of the thermal energy with them. Thermal energy is due to room temperature. So that room temperature energy E can be written as 3 by 2 kBT. Energy, this is form of kinetic energy, half mv square is 3 by 2 kBT. This 2 and 2 will get cancelled. V square will be 3 kBT upon mass of electron. Thermal velocity 3 kBT by m. जहाँ kB क्या है हमारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू है 1.38 into 10 पावर माइनस 23। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 9.1 into 10 पावर माइनस 31 kg, this is joule per Kelvin, is kg. And if I take temperature to be 300 Kelvin, अगर हम टेम्परेचर को 300 केल्विन कंसीडर करते हैं जो कि हमारा रूम टेम्परेचर है, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि थर्मल वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली वो क्या होगी? द वैल्यू ऑफ थर्मल वेलोसिटी will be of the order of 10 to the power 5 meter per second. Now this is very large velocity, it is approximately 100 kilometer per second. कॉन्सेप्ट पे जाइए आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी की वजह से काफी हाई वेलोसिटी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर पर सेकंड से वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। बट दिस थर्मल वेलोसिटी is of no use to us because with this thermal velocity we are not going to get any electric current out of it. अगर मैं मेटालिक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ और मेटालिक कंडक्टर के दोनों एंड्स की और बी की हम बात कर रहे हैं,
then number of electrons which are moving from A to B and number of electrons which are moving from B to A will be same, because this thermal velocity does not have any specific direction. ये डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है. करंट कब मिलेगा? जब डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज होगा. यहाँ पे जो चार्ज मूव हो रहे हैं वो चार्ज A to B या B to A जो मूव हो रहे हैं वो there is no specific direction associated with velocity of electron. So amount of electrons that are going in any random direction will be same. The distribution of velocity will be same along one direction. And because the distribution of velocity along one direction is same, amount of current that you are getting will be equal to what? Will be equal to 0. So no doubt that thermal velocity is enormous. That is 100 km per second. But even with this enormous thermal velocity, we are not getting any current only because there is no specific direction associated with this velocity, as this orientation or motion of electron is random and velocity is distributed equally in all directions. करंट के लिए मुझे क्या चाहिए? जब भी मैं बात करता हूँ करंट की तो हम बोलेंगे करंट इज नथिंग एज बट इट इज डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज. याद रखिए करंट सिर्फ फ्लो ऑफ चार्ज से करंट नहीं आएगा. करंट कब आएगा? जब हमें डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज मिलेगा. तो डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज कब मिलेगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. मान लो ये हमारा भाई कंडक्टर. अब हमने क्या किया है? हमने इस कंडक्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है. सपोज दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ वायर. Because you have applied the potential difference, there is electric field from positive potential to negative potential. क्योंकि हमने potential difference जो अप्लाई किया है इससे हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है from positive to negative. तो ये जो सारे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, मैं किसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रैंडमली दिखा रहा हूँ. तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट फोर्स लगेगा. जो फोर्स होगा वो क्या होगा? E into E. और ये फोर्स के वजह से जो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होगा, रैंडम मोशन तो अभी भी थर्मल वेलोसिटी के साथ चालू होगा, अभी भी उसका टेम्परेचर है, अभी भी रैंडमनेस है. बट ड्यू टू दिस फोर्स व्हिच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन विल गेट स्लाइटली ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स व्हाट? वन साइड. इलेक्ट्रॉन का जो ये मैंने स्ट्रेट लाइन दिखाया है, इट इज द पाथ इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. और ये जो डॉटेड लाइन से मैंने पाथ दिखाया है, इट रिप्रेजेंट्स द पाथ इन प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. सो बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स पाथ इज बीन deviated towards the right due to this electric field and due to this force. इलेक्ट्रॉन is being slightly deviated towards the right. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिविएशन होगा और ये डिविएशन में उसने डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया, कितना कवर किया भाई? ये डिविएशन में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है? डेल्टा x है. अगर उसने डेल्टा x डिस्टेंस कवर किया है, ये एडिशनल डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट है, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी मुझे डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t. ये है इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यू आर गेटिंग इट? There is randomness still associated with electron, but due to the force acting on electron, because of this electric field, electron is getting drifted slightly towards right, and due to that drift, we say that electron has gained some velocity towards right in this case, and that is called drift velocity Vd, which is equal to what? Delta x divided by delta t. Now due to this what will happen? अब इसके वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन के नंबर है सारे इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट राइट में ही होगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन में फोर्स जो है राइट में ही लग रहा है. मतलब कि ए से बी तरफ जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं n1, बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल ड्रिफ्ट will be greater than n2. n1 will
be greater than n2। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि नेगेटिव चार्ज जो है अब टेक्निकली कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज लार्जर, सो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट विल गेट विल बी opposite to direction of the, we can say, motion of electron, and that will be from B to A. You are getting this? So the entire discussion we can conclude by saying that thermal velocity, it is enormous, it is due to the temperature, but even this thermal velocity is not helping us for the current only because it is not directional, and this drift velocity, we'll discuss about its magnitude, it will be very much less as compared to thermal velocity, but still we can say that whatever electric current that we are getting is actually due to what? Drift velocity. It is not due to thermal velocity, but electric current we are getting is due to what? It is due to thermal velocity. Now moving ahead, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं चीजें। जैसे कि हमने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स व्हाट, राइट, और उसके ऊपर फोर्स भी लग रहा है, दैट इज E इनटू E, मतलब कि एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन E इनटू E, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मिल गई क्या, E इनटू E डिवाइडेड बाय m, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू गेटिंग दिस पॉइंट? वी आर सेइंग दैट इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट under the influence of this potential difference because of the force that is acting on it due to this electric field, and therefore one can say that electron is performing accelerated motion। अब फिर से एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेटेड मोशन की वजह से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो हमें कांस्टेंट करंट नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे ही वेलोसिटी इंक्रीज होते जाएगी वैसे करंट का मैग्नीट्यूड भी बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स राइट, बट एक्चुअली इट इज नॉट हैपनिंग। व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग? एज सून एज इलेक्ट्रॉन गेन्स इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट विल कोलाइड विद अनदर आयन एंड आफ्टर कोलिजन अगेन इट विल गेन रैंडमनेस एंड इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकम जीरो। उसकी थर्मल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, कोलिजन हम ऐसे मान के चलते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक होंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की वजह से जो आयन है वो तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन काफी टाइनी है एज कंपेयर टू आयन, तो हम ये बोल सकते हैं कि उनके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन व्हाटएवर ड्रिफ्ट इट हैज गेन्ड, व्हाटएवर ड्रिफ्ट इट हैज गेन्ड, इट विल लूज दैट ड्रिफ्ट। सो वन मे से दैट सपोज दैट जस्ट आफ्टर द collision its drift velocity Vd is 0, and when it makes second collision its drift velocity is Vd, and after second collision again its drift velocity is 0। आ रहा समझ में? एक collision के बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करते जाता है, और जैसे ही दूसरा collision होता है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वापस से 0 हो जाती है। This is what happening over here. It is gaining drift velocity after one collision, and just as it makes another collision, its drift velocity again becomes what? Vd. Just before collision, drift velocity is Vd, and as soon as it collides, its drift velocity again becomes 0. And if time interval between these two collisions is t, then we can use this relation v equals to v0 plus at, final velocity Vd, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन अभी हमने लिखा E into E डिवाइड बाय m into टाइम t, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, E into E डिवाइड बाय m into टाइम t। यहाँ पे टाइम t क्या है, इट इज टाइम
between two successive collision। यहाँ पे t क्या है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कलिजन, और उसी टाइम t को हम क्या लिख सकते हैं, उसी टाइम t को हम लिख सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टाइम t इज नथिंग एल्स बट व्हाट, इट इज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब एक चीज क्लियर है कि अगर रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, अगर रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। रिलैक्सेशन टाइम क्या है, इट इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कलिजन। मतलब आप ये बोल सकते हो कि अगर कलिजन फ्रीक्वेंसी कम है, कलिजन फ्रीक्वेंसी कम है मतलब मान लो कि 1 मिनट में सिर्फ 10 कलिजन हो रहे हैं, 1 मिनट में 10 कलिजन हो रहे हैं तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कलिजन क्या है, 6 सेकंड। और अगर 1 मिनट में सिर्फ 2 ही कलिजन हो रहे हैं तो मतलब कलिजन फ्रीक्वेंसी कम हुई तो टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कलिजन क्या है, 30 सेकंड। तो हम ये बोल सकते हैं एज कलिजन फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ कलिजन डिक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस व्हिच इंक्रीजेस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब कलिजन फ्रीक्वेंसी कैसे कम होगी, अगर ये इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी कम होगी, अगर ये इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी कम होगी, there is a less probability that it will make collision with the other ion, there is a less probability that it will again come under the influence of the other positive ion। मतलब कि मैं अगर टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर को कम कर दूं तो टेम्परेचर कम करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी भी कम होगी। अगर थर्मल वेलोसिटी कम होगी तो हम ये कह सकते हैं कि कलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। कलिजन फ्रीक्वेंसी कम होने से रिलैक्सेशन टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। यू आर गेटिंग दिस, एवरीथिंग इज रिलेटेड। इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर ड्यू टू दैट थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, एंड इफ थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस collision frequency decreases, due to decrease in collision frequency its relaxation time increases and eventually its drift velocity increases। अगर drift velocity increase हो रहा है मतलब करंट बढ़ रहा है, और करंट बढ़ रहा है मतलब उसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है। therefore in metals we say that resistance is inversely proportional to temperature। अगर you are getting this point, resistance is rather directly proportional to temperature। you are getting this point, as you go on decreasing the temperature thermal velocity decreases, collision frequency decreases, due to which relaxation time increase, drift velocity increase which results in increase of current, resistance increases। मतलब कि टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसलिए मेटल्स में हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस को टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो हमने ओम्स लॉ में भी डिस्कस किया था। इफ टेम्परेचर इज मोर रेजिस्टेंस इज मोर, टेम्परेचर इज लेस रेजिस्टेंस इज लेस। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फाइनल इक्वेशन मुझे मिलेगा वो क्या होगा, E into E डिवाइड बाय m into रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ये है मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? It is the velocity gained electron due to this electric field generated by potential difference applied across its terminal। Now we move to next part। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला में क्या मिला है, हमने लास्ट देखा P into E divided by m E into tau। यहाँ पे E क्या है, it is the इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ जो इट इज नथिंग एल्स बट व्हाट, इट इज रिलैक्सेशन टाइम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी।
relation between drift velocity Vd and current density J। काफी इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा इसमें। डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है 2 या 3 मार्क में आपके बोर्ड एग्जाम में। डेरिवेशन हमें अब रिलेशन एस्टैब्लिश करना है बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। इफ दिस इज द कंडक्टर, ये जो है वो क्या है भाई, एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है, मान लो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से मूव हो रहे हैं। मतलब ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये होगा करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द व्हाट मोशन ऑफ वायर। ये मैंने सेगमेंट ऑफ कंडक्टर लिया है, कंडक्टिंग वायर लिया हुआ है। All electron over this cross section, this area of cross section, it is equal to A, and electron over here at this area of cross section are moving with drift velocity Vd. Now distance traveled by these electrons in time delta t, अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन जो Vd जितने स्पीड से जा रहे हैं उनको डेल्टा टी टाइम दूं तो उन्हें डिस्टेंस जो ट्रैवल किया होगा वो क्या होगा, Vd इंटू डेल्टा टी। अगर वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं Vd इंटू डेल्टा टी, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। These electrons are initially over here, they are moving with drift velocity Vd, and if I give time delta t, then distance traveled by them will be Vd delta t. So all these electrons which were initially over here, they will reach over here. अच्छा, इसके आगे जो इलेक्ट्रॉन होंगे सेगमेंट में वो कहाँ चले जाएंगे, और आगे चले जाएंगे। मतलब कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम में शेडेड पोर्शन से जो वॉल्यूम दिखा रहा हूँ, ये वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन है they were initially to the left of this cross section, they were initially to the left of this cross section, and within time delta t they have moved over here in this cross section area. Initially all these electrons were to the left of cross sectional area A, and during time delta t they have moved over here and they occupied this shaded region. यहाँ ऑलरेडी जो थे वो बाहर चले गए या नए इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। सो वन कैन से दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन which is crossing area A in time delta t will be equal to area A into Vd delta t, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वॉल्यूम हम कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो ये जो पूरा वॉल्यूम है इट इज नथिंग एल्स बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A into this distance Vd delta t. So we can say volume occupied by electron crossing this area in time delta t will be A Vd into delta t. You are getting my point? जो सारे यहाँ इलेक्ट्रॉन थे वो रीजन में आ गए हैं, उन्होंने एरिया ए को क्रॉस किया है डेल्टा टी टाइम में, एंड दिस इज नथिंग एल्स बट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन occupied by those electron rather which have crossed area A in time delta t. अब मैं अगर आपको ये कहूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन की, वो भी ध्यान दीजिएगा, सारे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि जो मोशन कर रहे हैं, जो रैंडम मोशन कर रहे हैं या तो जो करंट में अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सिर्फ कौन सा है, फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट
वॉल्यूम अगर मैं वो तो उसकी वैल्यू है n, number of free electron per unit volume, it is equal to say small n given to us, इसे हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, चार्ज कैरियर डेंसिटी भी कहते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इट इज इक्वल टू स्मॉल n। तो ये जो वॉल्यूम है हमारा, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी है वो इस एरिया में से आ गए, तो हम ये कह सकते हैं number of electron crossing area A in time delta T is number of electron per unit volume n into volume occupied, वो क्या है A VD delta T। तो this is nothing else but what? Number of electron which have crossed area A in time delta T। अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, therefore what is charge that is being flowing through area A in time delta T। चार्ज क्या होगा? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NaVd delta T into चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्मॉल e, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन into E, it is nothing else but charge that is flowing। So delta Q is NaVd delta T into E। तो यहाँ से लिख सकता हूँ डेल्टा Q by डेल्टा T क्या आएगा? NaVd into E। डेल्टा Q by डेल्टा T क्या होता है? करंट NaVd into E। तो करंट I अपॉन एरिया क्या होगा? NaVd। I अपॉन एरिया होता है J, इट इज इक्वल टू NaVd। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारा, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू NaVd। जो गेटिंग दिस, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लिख के तैयार करिएगा। कहां से हमने स्टार्ट किया था? ये क्रॉस सेक्शन में जो सारे इलेक्ट्रॉन है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी Vd है। अगर उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है तो डेल्टा T टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? Vd डेल्टा T। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इन टाइम डेल्टा T वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? वॉल्यूम विल बी AVD डेल्टा T। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस वॉल्यूम और अदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग दिस एरिया इन टाइम डेल्टा T is NaVd delta T। and if this is the number of electron, what is the charge crossing? number of electron multiplied by ये तो डेल्टा Q मिला, डेल्टा Q by डेल्टा T से करंट मिला, करंट अपॉन एरिया इज नथिंग एल्स बट व्हाट? करंट डेंसिटी। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट हमें काफी जगह न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। क्या है भाई हमारा रिजल्ट? बोलिए कि भाई J equals to what? J equals to NaVd। this is the result, current density J equals to NaVd। getting this? एक और डेरिवेशन देख लेते हैं हम, इसका कंटिन्यूएशन ही है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। J को क्या लिखा जा सकता है? J को लिखा जा सकता है Ne, और अब ये जो Vd है E इंटू E डिवाइड बाय Me इंटू टाउ। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारी, इसे हम क्या लिख सकते हैं? E इंटू E। rather I am thinking about Ohm's law in vector form, so we are going a bit ahead। Ohm's law is given as what? V is equal to IR। V voltage, I current, R resistance। रेजिस्टेंस हमने देखा है कैसे लिखा जा सकता है? रो L by A। तो वोल्टेज V अपॉन लेंथ L इज I अपॉन A। I अपॉन A क्या है? J इंटू रो। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड J इंटू रो। तो J इज 1 by रो इंटू E। J इक्वल्स टू सिग्मा E। दिस इज J इज आल्सो वेक्टर,
E is also vector, so J is equal to sigma E. It is nothing else but what? Ohm's law in vector form. ये भी एक रिजल्ट यूजफुल है. डिराइव ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. V is equal to IR से आप इजीली डिराइव कर सकते हो. अब J equals to any PD जो इक्वेशन आया है हमारे पास, उसमें J को सिग्मा E लिख सकते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगा? हमारा था फॉर्मूला E into E डिवाइड बाय me into रिलैक्सेशन टाइम टाउ. इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होगा. सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी? n स्क्वायर टाउ बाय me. तो मैंने बोला था कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम है. अगर रेजिस्टिविटी चाहिए रो, तो सिग्मा का रेसिप्रोकल me अपॉन n स्क्वायर टाउ. ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दोनों वाले इंपॉर्टेंट है, दोनों पे आप ध्यान दीजिएगा. ओके, सो कीप दिस सेशन टिल हियर. इन नेक्स्ट सेशन विल continue with topic of mobility and then the further topic of EMF and terminal voltages.